your pyar with your own state. Like when I entered Punjab, I always had that because my family belongs to Punjab. So I always had that कि पंजाब के लिए कुछ अच्छी सी एक चीज़ बना के दिखानी है, एक शुरुआत करनी है. Have you actually affected Elante's sale? तो आज वो 40,000 पॉपुलेशन कहीं जो जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं जा रही, हमारे पास आ रही है. तो इसका मतलब कहीं तो कहीं वो गैप रहा होगा, या कहीं तो कहीं से वो नंबर्स कहीं से कम होके हमारे नंबर्स बढ़े होंगे. अच्छा प्रमोटर, अच्छी लोकेशन, अच्छी डेवलपमेंट हो रही हो. अब सर इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा प्रमोटर, एज यू मेंशन की प्रोफाइल. अब एज अ ले मैन मेरे लिए प्रोफाइल यही कि जो मैं न्यूज़पेपर में एड्स देख रहा हूँ, जो मैं एफएम में एड्स सुन रहा हूँ, या जो मैं बिलबोर्ड्स पे एड्स देख रहा हूँ. हाय, सत श्री अकाल, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोर्ड्स एंड आई एम योर होस्ट सरदार तरुण. Well, today's episode is going to be very exciting as we have a special guest who doesn't need any introduction. In Chandigarh and Mohali, whenever we see Chandigarh and Mohali in social media or in Punjabi movies, there are majorly 2 to 3 landmarks which came, like Homeland Heights and CP67. We have our guest who is a main face behind these pillars, presenting Mr. Umang Jindal, director with Homeland Group. Welcome Umang Paji to the show. Thank you Tarun bro. Great. Umang Paji, Homeland is not only a project, it becomes a major landmark for Mohali. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਅਪ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਬਿਕੇਮ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡ. देखो when we were coming up with Homeland, we never thought कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मूवी 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕभी मतलब इस तरीके का कोई प्रोडक्ट तैयार करना है. It is just कि it was my first so called baby कि that's how I entered real estate. So entering into real estate, my first baby, तो all मतलब बहुत energy सी. I just finished my college, so this back in 2013. So that's when I conceived Homeland Heights with lot of मतलब जितना भी लाइफ में ट्रैवल किया है, जितनी भी चीज़ें बाहरों सीखे हैं, दैन एकदम यंगस्टर सी, तो सारी जो एक साथ कोलैबोरेट करके होमलैंड हाइट्स ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ. ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਿਕਮ ਸੋ ਹਿਊਜ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ. See, I've not done anything to do with real estate in terms of education, but though I consider real estate करने के लिए you don't need any sort of degree or any sort of qualification. It is more about your कि it is totally about your intellect, your how you see buildings, how you see skyscrapers all around, and then your pyar with your own state. Like when I entered Punjab, I always had that because my family belongs to Punjab. So I always had that कि पंजाब के लिए कुछ अच्छी सी एक चीज़ बना के दिखानी है, एक शुरुआत करनी है. So that's when I started Homeland Heights. ग्रेट. एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ since I am doing real estate, there are multiple projects coming here, luxuries, super luxuries, mix affordable premium, but Homeland has become a landmark. ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਈਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. See, it is the right mix that we've always had in any of our projects. The experience behind our group, the Unity group, and the people who are working with us, who've literally blessed us in every step that we've always took. And name it, I've got even the architects and all, the contractors, the consultants. वो हमारा एक बहुत बड़ा पैनल है. एंड ट्रस्ट मी, जो हमारी ये जो सिनर्जी बनी हुई है विद द राइट आर्किटेक्ट, विद द राइट कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, नेम इट MEP और लैंडस्केप, देन हैविंग द राइट बैक, एंड देन हैविंग द राइट एक्सपीरियंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द विजन. That is one reason that Homeland today has become a benchmark for the market, and it has totally become a benchmark for us as well. मतलब हमारे लिए भी एक होमलैंड हाइट्स के बाद फिर हमने CP किया ग्रुप ने, तो CP को अब हमने इतना अच्छा बना दिया कि अब हम एक नया कमर्शियल बनाने लगे हैं. सो वी ऑलवेज थिंक कि अब CP को ऑलरेडी नंबर 1 बना दिया, हम नए वाले कमर्शियल में ऐसा क्या करेंगे कि वो इससे भी बेटर चीज़ निकल के आए. सो इट इज़ मोर ऑफ अ बेंचमार्क फॉर अस देन फॉर द अदर बिल्डर्स इन द मार्केट.
So just wanted to know the forces behind Unity, like how they are executing the things. Actually, Kiana, there was a big gap in the market. Till now, there was only one shopping mall in Chandigarh, which is almost 1 million square feet, जो इतने टाइम से चल रहा था, पिछले 15 सालों से, आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो इतना बड़ा गैप मार्केट के अंदर था. आज मोहाली इतनी बड़ी डेवलप, मतलब मोहाली ओवर द पीरियड लास्ट 10 ईयर्स में बहुत चेंज हो चुका है. इवन इफ यू लुक एट द डेमोग्राफिक्स, द पॉपुलेशन, आज एक इंडिपेंडेंट मार्केट है जो कि आई थिंक इसको भी एक नया कमर्शियल एस्टेट की ज़रूरत थी. आज तक अभी तक ट्राई सिटी में हमारे सिर्फ वो चंडीगढ़ के मॉल के बाद यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज कमर्शियल प्लेयर नहीं आया था. उस गैप को हमने देखते हुए फिर हम लोग देन वी वेंचर्ड इनटू द CP67 जो इस एयरपोर्ट रोड पे लेके आए फिर हम लोग. We discuss about mall culture. So yes, you are very much right कि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ prominent mall ਹੈਗਾ Elante, which is you know a face of you can say entire Punjab, because ਪੰਜਾਬ ਦੀ history ਰਹੀ ਹੈ, be it any district or any city, ਕੋਈ ਵੀ mall ਇੰਨਾ successfully ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ Elante ਚੱਲਿਆ. In Mohali also there came few malls and with some big brands and big names, but unfortunately ਉਹਨਾਂ footfall ਤੇ ਉਹਨਾਂ revenue ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ when CP came into existence ਹੋਇਆ. So I just wanted to know the game changer, like how CP become the game changer, because brands ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਆਈ ਐਂਡ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ. See, Elante as an estate was very important for entire Punjab today, क्योंकि Elante के आने से ही एक कमर्शियल होता क्या है उसको एक डेफिनेशन आज Elante ने दी है Right. पूरे पंजाब में. इफ यू लुक एट Elante numbers, they still they have excellent numbers, एंड आज उन्हीं के कारण उन्होंने एक ऐसी चीज़ एक चंडीगढ़ में बनाई जिसके कारण हरियाणा भी, हिमाचल भी, जम्मू भी, पंजाब भी, सब जगह एक जगह इकट्ठा हो पाया. Right. But then looking at the population and looking at how everyone from across Punjab, they really want to come near to Chandigarh, नियर टू मोहाली, नियर टू पंचकुला. तो वो जो गैप था ना बहुत बड़ा मार्केट के अंदर, एंड दैट बीइंग अ वेरी ओल्ड स्टेट नाउ, 15 साल पुरानी, एंड देन आज की डेट में क्या है, जनरेशन को नई चीज़ें चाहिए मार्केट के अंदर, नई डेवलपमेंट चाहिए, नई लुक एंड फील चाहिए, नया सेंस ऑफ अराइवल चाहिए. मतलब दुकान, आज आप CP के अंदर कोई आप दुकान भी देखेंगे, अच्छा इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ से, आज आप PVR देखिए हमारा, आप PVR जिस लेवल के अंदर PVR ने इंटीरियर्स किए हुए हैं, एंड यू लुक एट एनी PVR अक्रॉस पंजाब टुडे जो पुराने हो चुके हैं, तो दिस इज द मोस्ट अपग्रेडेड, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ PVR. तो यही चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन आज के डेट में ढूंढ रही थी, कि एक चीज़ से बहुत बोर हो चुके थे, बहुत पुराना हो चुका था, तो दे वांटेड समथिंग न्यू इन द मार्केट. अब जैसे आप कोई भी बोइंग 777 नए आ चुके हैं, अब लोग क्या ट्राई करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, तो दे ऑलवेज लुक एट कि ये नया प्लेन है या पुराने वाला प्लेन है. तो ऐसे ये दिस इज द राइट एग्जांपल फॉर आवर रियल एस्टेट ऑल्सो, कि दिस इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेंड की बात करो आप, चाहे हमारे सेंस ऑफ अराइवल की बात करो, आप हमारे इंटीरियर्स की बात करो, हमारे वॉशरूम्स की बात करो, लुक एंड फील की बात करो, दुकानों के अंदर की लुक एंड फील की बाट करो, ये सब एकदम लेटेस्ट है, जो कि आज के जेनजी को भी चाहिए, हर तरीके की पॉपुलेशन को चाहिए. So this is what we tried bringing in here with the right synergy, and today we are happy with the numbers here, and we never expected कि हमें इतना अच्छा वॉल्यूम, मतलब in terms of लोग यहाँ पे चल के आएंगे और यहाँ पे इतना शॉपिंग करेंगे. So Baji, as you mentioned about numbers, I just need a very candid answer. Have you actually affected Elante's sale? Have you ever affected Elante's sale? I think Elante will be the right person to answer this. All we know is कि our footfall of the mall is almost 40,000 on a weekend, and wherein अभी तक ये 40,000 पॉपुलेशन कहीं तो जा रही थी. That's huge. तो आज वो 40,000 पॉपुलेशन कहीं जो जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं जा रही, हमारे पास आ रही है. तो इसका मतलब कहीं तो कहीं वो गैप रहा होगा, या कहीं तो कहीं से वो नंबर्स कहीं से कम होके हमारे नंबर्स बड़े होंगे. So that's all I can say, कि we're happy with the numbers. The market is very happy with our development that we've done. You can literally look at the excitement of, especially of the Mohali people around, कि वो इतना easy, इतना comfortable हो गए हैं वो यहाँ पे, वो उनके लिए neighborhood mall बन गया है वो. मतलब एक उनके घर से निकलते उनको एक सब कुछ एक उनके कदमों पे अवेलेबल है. Because we were discussing few days before, and I checked with Collective people as well. Collective is a major brand in Elante as well as in CP. The Collective numbers are
comparatively higher in CP as compared to Elante. So this shows कि in Mohali and nearby region people are more keen to come here and have their experience. हाँ, इस नंबर को तो हम लोगों ने भी इवैल्यूएट किया कि ब्रांड्स के यहाँ पे नंबर्स और वर्सेस एनी अदर सेम रिटेल का नंबर चंडीगढ़ में क्या है. तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करने का बड़ा अच्छा एक हमने कंक्लूजन निकल के आया कि द डिस्पोजेबल इनकम टुडे इन मोहाली is far better than if you compare to any person who's residing or traveling in Chandigarh or who's going to shop in Chandigarh right now. Right. So अगर आप हमारे numbers देखो per square feet sale देखें तो it is lot better than any other commercial estate in Tri-City today. तो ये सब एक ही चीज़ सिग्निफिकेंट मतलब इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम मोहाली वालों के पास, जीरकपुर वालों के पास, मुल्लापुर वालों के पास आज की डेट में डिस्पोजल इनकम बहुत ज़्यादा है जो कि लोग खर्चना चाहते हैं. लोग विंडो शॉपिंग के लिए नहीं, एक्चुअल शॉपिंग के लिए निकल के आ रहे हैं. Pari, you said very right, and I must relate in one aspect कि when there were other malls, some big brands were there, they also tried to pull that crowd, but मुझे लगा कि the way you entertained the celebrities, I mean now Diljit is international name, so Diljit came, Amy came, and Vicky Kaushal and some other lineups are there, so that has become a major crowd puller कि now celebrities are eyeing here rather than going to Elante and some other properties. See, it is not कि we call up these actors and tell them कि आप हमारे पास आओ, हमारे मॉल में आओ. अगर आप किसी को बोला के आओ, किसी को कहो कि आप आएँ तो ऐसा कभी भी कोई सेलिब्रिटी नहीं आता है. Right. उन लोगों को मार्केट की पल्स दिख रही है, वो लोग सोशल मीडिया पे भी होते हैं. दे सी कि मेजर फुटफॉल आज की डेट में कहाँ जा रहा है. Exactly. और जहाँ जा रहा है वहाँ पे क्वालिटी फुटफॉल कितना जा रहा है, एक्चुअल स्पेंडिंग करने वाले लोग कहाँ पे जा रहे हैं. तो ये सब इन लोगों के साथ अपनी बड़ी बड़ी टीम्स बैठी होती हैं, ये सब उन चीज़ों के एनालिसिस करते हैं. उन सबको एनालिसिस करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया, इन लोगों ने सोचा कि आज की डेट में करंटली सबसे ज़्यादा अगर कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा ट्रेंड अगर मतलब कुछ ट्रेंड सेट कर रहा है तो वो CP67 है. Right, and we also did a small ref check with some brands here in CP67 like Collective I mentioned, Chayos also. Chayos himself admitted कि our sale is better than a sale in Elante. So these are quite impressive numbers, and again credit goes to you and the location, the way you managed up the show, because इससे भी ज़्यादा doubles areas में, इससे भी बड़े premises में malls थे, but unfortunately वो ये quality और ये brand deliver नहीं कर पाए what you achieved in that scenario. See again that's totally the experience जो पीछे यूनिटी ग्रुप का इतना बड़ा एक्सपीरियंस रिटेल के अंदर रहा है. हैविंग द राइट मिक्स एट द राइट टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मतलब इतना आप सोचिए कि उन लोगों का इतना दुनिया भर का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा रहा है. तो एंड स्पेशली वो दिल्ली के अंदर बैठे हैं जो कि गढ़ माना जाता है कमर्शियल रियल एस्टेट का पूरे इंडिया में. तो वो एक्सपीरियंस बड़ा मैटर किया. आज एक एक दुकान आप देखिए तो बहुत सेलेक्टिवली हमने किसी को 200 स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट बहुत सेलेक्टिवली ब्रांड को स्टडी करके जो यहाँ पे अच्छे नंबर्स कर पाएंगे उस तरह से हमने एक एक ब्रांड को वहाँ पे मतलब आप समझ लो हमने उसको वहाँ डाला है. Right. अब तो विराट कोहली's brand is here with you now. It is almost live. Bira, the first brand. PVR Luxe, the very first in Punjab. So that become again a benchmark कि पंजाब में पहले brands यहाँ पे आ रहे हैं. तो I can very well imagine कि how far it will be. And any other lineup sir in terms of brands की कुछ और आप सोच रहे हैं? See, अभी भी इस इंडस्ट्री I still consider real estate as a very virgin market today. मतलब मैं पिछले 2-3 साल से अभी मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि अभी भी पंजाब ने रियल एस्टेट नहीं देखा है. अभी तो पंजाब में रियल एस्टेट की शुरुआत हुई है. तो एंड इवन इफ यू लुक एट द कमर्शियल रियल एस्टेट भी आप देखें तो आज भी इतनी सारी मतलब देयर आर 400-500 ब्रांड्स इन द मार्केट जो कि अभी तक पंजाब में एंटर नहीं किए हैं. ओके. एंड यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या लगा लोगों के नंबर्स, स्टोर्स के नंबर्स देख के कि लोग थोड़ा प्रीमियम की तरफ और जाना चाहते हैं. Exactly. पीपल वांट टू बाय मोर ऑफ Ralph Lauren, they want to buy more of Burberry, more of Tumi, more of luxury brands today. तो वो एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम है इस इंडस्ट्री के अंदर जो कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो नया एस्टेट है, जो हम नया इसी एयरपोर्ट रोड के ऊपर हमने कॉक से भी पीछे कुछ लैंड लिया है जिसके अंदर वील ट्राई टू कम अप विद द मोस्ट लग्जूरियस शॉपिंग मॉल टुडे इन ट्राई सिटी जो कि इन सब ब्रांड्स को फिल करेंगे वहाँ पे. ग्रेट. एंड उमंग भाजी देयर इज अ मिथ इन कमर्शियल बट पर्सनली आई फील कि if an investor, if we think about investor's point of view, if he invest in commercial, either commercial hits or flops. आज अगर एक मॉल बड़ा अच्छा चल रहा है तो इसकी कोई एश्योरेंस नहीं कि 2 साल बाद भी उस कंटेक्स्ट में चलेगा. और हमने देखा ही है पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी मॉल्स के और काफ़ी कमर्शियल लाइनअप है जो बिल्कुल रॉ पड़े हुए, आइडल पड़े हुए हैं. सो एनी
pointers or any advice you want to accelerate कि how malls get flow up और क्या इस पे एज अ डेवलपर आपके इनपुट्स है कि ये कंटिन्यूसली ये लेगेसी चलती रहेगी. एंड एक चीज़ और जो मुझे पर्सनली इस ब्रांड की और इस एरिया की सबसे इफेक्टिव लगी कि जो हमने सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन जो हमने कमिट करना था उससे ज़्यादा हमने डिलीवर किया है. तो मुझे लगता है कि एक होमलैंड की लेगेसी है कि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उससे डिलीवरीज हमारी हमेशा ज़्यादा रही हैं. पर्टिकुलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द एलिवेशन द फसाड पार्ट जो लाइटिंग्स थी आई थिंक दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इनिशियली बिकॉज वी वर पार्ट विद यू व्हेन यू स्टार्टेड अप द प्रोजेक्ट. और उसके बाद ये सारा बनकर आया और दैट यू नो रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट एंड ह्यूज दिस थिंग. तो ये ओवर द पीरियड व्हाट वी लर्नड इज कि हम लोग का ना बाकी बिल्डर्स की तरह इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है. हम लोग का इतना बड़ा प्लेटर नहीं है लोगों को दिखाने के लिए. जितने हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे जितने बड़े वर्किंग हैंड्स हैं, मतलब इतने सारे वर्किंग हैंड्स हैं. बहुत कम काम है हमारे पास, बहुत बड़ी फैलावट नहीं है हमारे पास. तो जितनी फैलावट है उतने काम करने वाले लोग हैं. तो हर काम के ऊपर कोई तो कोई बैठा है काम देखने के लिए. एंड उसके बाद सेकेंड आप बात करिए कि क्योंकि कम काम होने के कारण आज हमारी कॉस्ट ऑफ कैप एक सबसे बड़ा एसेट एक और है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी ज़ीरो है. जो कि नॉर्मली लोगों ने फंड रेज किया होता है. आज हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़ीरो है क्योंकि हमारी फैलावट नहीं है. हम 0% लेवरेज्ड हैं. हमने कोई ज़्यादा पंगे नहीं लिए हुए कि हमने कहीं से कोई लोन लिया है, मार्केट से कोई लोन लिया है. तो कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने के कारण हम क्या ट्राई करते हैं कि जितना हमारे हाथ में काम है उसी में उतनी एनर्जी मारे, उसी में 4 गुना और एनर्जी मारे और उसी की हम मैक्सिमम आउटपुट निकालें. रादर मैं आज 10 प्रोजेक्ट ले लूँ, कॉस्ट ऑफ बाहर से फंड भी लेके आऊँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा बढ़ जाएगा, मैं और लेवरेज हो जाऊँगा और एक मेरे दिमाग में बर्डन पड़ जाएगा कि कैसे उसको लिक्विडेट करूँ. सिर्फ पैसे घुमाने के रोटेशन में रह जाऊँगा मैं. तो हम लोगों ने क्या सोचा कि उमंग हम लोग कम काम करें पर जो भी प्रोजेक्ट करें उस पर इतनी एनर्जी मारें कि उसकी रिटर्न एटलीस्ट 4x 5x हो. ग्रेट. मतलब एक ही काम के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को 4 तरीके से देखते हैं. CP67 के मेरे 4 टावर हैं तो मैं इसको एक प्रोजेक्ट नहीं मानता, मैं इसको 4 प्रोजेक्ट मानता हूँ अपने. बिल्कुल ठीक. तो हम सारा का सारा उसी को एक ही प्रोजेक्ट में सारा दम लगाते हैं पूरा परिवार कि इसको बेस्ट टू बेस्ट कैसे बनाएं, इस पर मैक्सिमम और कितना पैसा लगाएं और इससे मैक्सिमम रिटर्न क्या निकालें. बहुत बढ़िया. तो ये एक हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. तो आप तभी देखेंगे हमारे पास कोई ये नहीं कि हमारे 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. वन एट अ टाइम ही चलते हैं. 1 2 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पैरेलल चल रहे होंगे, कभी भी चल रहे होंगे. तो ग्रेट. हमने बात की लेवरेज की, हमने बात की फंडिंग की. बिकॉज आई रिमेंबर कि देयर वाज अ न्यूज़ 3 साल पहले डाउन द लाइन कि व्हेन यू परचेज दिस रिगालिया लैंड दैट वाज द टॉक ऑफ टाउन कि एक ही बार में 1 शॉट रजिस्ट्री थी. तो जनरली गमाडा से जब हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो गमाडा गिव्स 5 to 7 years और मे बी 8 years ऑफ टाइम पीरियड कि आप आराम से पैसा दो. तो आपने क्यों आराम से ना देने की वजह एक ही शॉट में देना ये क्या ना, ये इंडस्ट्री इतनी लुक्रेटिव लगती है कि अगर अकाउंट में पैसा पड़ा होना ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. पर ये बहुत बड़ी बात. हमारे सीनियर लोग जो यहाँ बैठे हैं आज उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो हम यंगस्टर्स को बार बार रोकता है कि तेज मत चलो. तेजी इस इंडस्ट्री में तेजी बड़े लोगों ने देखिए क्या हुआ है. अच्छे बिल्डर्स का भी नुकसान हुआ है, कुछ अच्छे भी काम करते थे उनका भी नुकसान हुआ है, जो बुरे काम करते थे उनका नुकसान हुआ है. तो आज उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कहा जितने पैसे हैं पहले उस जगह की हम रजिस्ट्री अपने नाम पे कराएं. एक जगह की ओनरशिप तभी आती है जब आपकी रजिस्ट्री आपके जेब में है. आई थिंक अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहाली में अगर लेट से 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 या 4 प्रोजेक्ट होंगे और मे बी कम की जिनकी पूरी सेल्फ ओन्ड लैंड है. सर मैं बात करना चाहूँगा रिगालिया की, बिकॉज रिगालिया इज़ अगेन अ टॉक ऑफ टाउन, द मोस्ट लग्जूरियस एंड द मोस्ट यू कैन से एक्सपेंसिव बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट एज ऑफ नाउ. और आपके साथ जब थोड़े दिन पहले डिस्कशन हो रही थी एंड यू सेड अ वेरी हैवी स्टेटमेंट कि दैट विल बिकम कमेलियाज ऑफ मोहाली. तो I just want to know in detail कि how you are expecting such a big vision. I mean, Camellia is a major landmark of Pan India. So see, there is no rocket science किसी भी प्रोजेक्ट को और एक अच्छा बनाने के लिए. इट इज़ ऑल कि आपकी बैक कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है. अगेन सेम चीज़ जैसे मैं पहले समझा रहा था कि हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है कि हम लोग होल्ड नहीं कर सकते. हमारे पास यही 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, इसी पे जितनी एनर्जी मारेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा. तो हम लोगों ने अपने रिगालिया को भी इस तरह से सोचा कि इस पर मैक्सिमम एनर्जी मारते हैं. इसमें जो भी मार्केट के अंदर जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रेंड चल रहा है, चाहे बोलिंग एले की बात करो, हीटेड स्विमिंग पूल की बात करो, कैफ़े की बात करो, बॉक्सिंग रिंग इनसाइड जिम्नेजियम की बात करो, या फ्लोर टू फ्लोर हाइट की बात करें, आप विंडो की बात करें, आप रिसेप्शंस की बात करें, लुक एंड फील की बात करें, सेंस ऑफ अराइवल की बात करें,
वो सारी चीज़ें हमने ट्राई की हैं कि हम होमलैंड रिगालिया के अंदर बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर को ऑफर कर पाए। और उसी कारण है कि वी डिमांड दी हाईएस्ट प्रीमियम इन द मार्केट, वी हैव दी लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ से नंबर ऑफ यूनिट्स इन द मार्केट। ये नहीं कि हमारे 1000-2000 यूनिट हैं, 270, 280, 203 इतने 300 से कम यूनिट हैं, बड़ा सेलेक्टिवली बड़ा आराम से बेच रहे हैं। We try to sell it to the end user, we try not to give it to the investor. Right. Ours is totally an end user driven product, जिसमें आदमी रहने के लिए ले, ना कि पैसे लगाने के लिए। हम चाहते हैं जब कोई आदमी ले तो उसमें रहे भी आके। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने चीज़ बनाई हुई है। बिकॉज अगर मैं मोहाली की बात करूं, आज की डेट में अगर हम 5, 7 या 10 करोड़ की बात करें तो वी कैन गेट इजीली 500 गज की एक अच्छी कोठी हम एक बना कर रह सकते हैं। बट स्टिल मोहाली पीपल चोज टू इन्वेस्टेड इन रिगालिया। देयर आर सम बिग नेम्स जिन्होंने यहाँ पे अपने फ्लैट्स बुक कराए, एंड आई वाज अमेज्ड टू नो 13,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट आप डिलीवर कर रहे हैं, जितने में हम एक 1000 गज की कोठी बना सकते हैं। तो मैं क्यों 13,000 गज वाला 13,000 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट लूँ, जबकि मैं एक बड़ी लेविश कोठी बड़े लेविश सेक्टर में रह सकता हूँ। तो देखो, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ योर नेबरहुड, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज की डेट में अगर किसी, आप देखिए जी, अब ये जनरेशन ऐसी आ गई जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। राइट। एंड मेजॉरिटी हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है तो बच्चे घर पे स्कूल में 3 बजे के बाद आ जाते हैं, एंड पेरेंट्स रात को 6 से 7 बजे के बीच में आते हैं। तो वो जो गैप रहता है 3 से लेके शाम के 8 बजे तक का, उस टाइम में पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है ऑफिस बैठे कि बच्चे हमारे सेफ हैं, सही नेबरहुड में हैं, उनके पड़ोसियों के साथ खेल रहे हैं, सही पड़ोस के अंदर हैं या नहीं है, अगर क्लब के अंदर भी हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह चल रही हैं या नहीं चल रही। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि लिविंग हैज बिकम मोर ऑफ किड सेंट्रिक एंड सीनियर सेंट्रिक टुडे। क्यों घर के अंदर रह कौन रहा है, आपका बच्चा रह रहा है या आपके माँ बाप रह रहे हैं। राइट। हम तो खुद काम के लिए निकल जाते हैं, हम निकल गए, सुबह निकलते हैं, शाम को जाते हैं। तो जो घर को एक्चुअली जो एंजॉय कर रहा है वो बनाए, हम लोग उसको बनाते हैं बच्चों के हिसाब से या सीनियर्स के हिसाब से। राइट। कि मैक्सिमम उन लोगों ने टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हमने कोई भी, जितनी हमारी आने वाली भी हाउसिंग है, सबके सब हमने मेजरली फोकस 2 चीज़ हमारे, दैट इज सीनियर सेंट्रिक हाउसिंग एंड किड सेंट्रिक हाउसिंग। राइट। तो जैसे उमंग पाजी, जो होमलैंड हाइट्स है अपना, यहाँ पे नेम एनी सेलिब्रिटी जिनका नहीं था यहाँ पे, फ्रॉम जैजी बी टू मनकीरत एंड मेजर सेलिब्रिटीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु बुक देयर अपार्टमेंट्स हियर। और यहाँ पे कुछ लाइनअप्स यहाँ, इफ़ यू वांट टू रिवील सम नेम्स की वी सोल्ड अगेन वेरी सबसे एक हमारी एक बहुत बड़ी जीत रही है इस इंडस्ट्री के अंदर कि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं डे 1 से, आज वही लोग हमारे प्रोजेक्ट में जम मार के वही हमारे एंड यूजर्स दोबारा बन जाते हैं। मतलब हम लोग को आज की डेट में गॉड की इतनी ग्रेस है कि वी डोंट नीड टू मार्केट अ प्रोडक्ट, वी डोंट हैव अ ब्रोशर टुडे, वी डोंट हैव अ वेबसाइट टुडे, वी डोंट गो सेल अग्रेसिवली आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कोई क्लाइंट को कुछ चाहिए तो हमारी बड़ी छोटी सी टीम है, 5-6 लोगों की सेल्स टीम है जिनसे बात करते हैं। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, हमें कस्टमर समझ आता है तो हम उसको अपनी चीज़ देते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई देयर। The per square foot maintenance is extremely high today at any good developer in NCR region would do। उस लेवल में हमारी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है। तो ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई रखिए क्योंकि लोगों को आज के दिन में सिक्योरिटी वगैरह चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को आज मार्केट अंडरस्टैंड करती है कि अगर आज होमलैंड ग्रुप, यूनिटी ग्रुप कोई चीज़ बना रहा है तो ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट इन द मार्केट। तो आज उसी कारण आप वेरियस सेलिब्रिटीज़ के नाम लीजिए, चाहे हार्डी संधू जी हैं, और सेलिब्रिटीज़ का नाम तो मैं भूल गया, मतलब बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे हमसे, जाजी भी हैं, हार्डी संधू हैं, और भी कुछ ऐसे नाम है जिनका नाम लेना मेरे को, आई एम नॉट, निम्रत खेरा भी हैं, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज। आई कीप गेटिंग कंफ्यूज, इतने सारे हो चुके हैं इतने सारे प्रेस के अंदर कि कौन कहाँ पे रह रहा है आज के डेट में। वेरी राइट। एंड सर, वन थिंग विच आई विटनेस बीइंग इनटू रियल एस्टेट, कि दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ लग्जरी और इन टर्म्स ऑफ थिंग्स की जिसका आज तक हमने कोई वेबसाइट, कोई ब्रोशर, कोई ल्यूक्रेटिव फ्लायर्स और ल्यूक्रेटिव एड्स हमने नहीं देखी। तो मैं बड़ा अमेज हुआ। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी, इट इज़ इवॉल्विंग एवरी डे। आप हर एक दिन नई चीज़ सीख रहे हैं, पूरे दुनिया में कुछ तो कुछ नया रेजिडेंशियल में कोई तो कोई नई चीज़ ऐड हो जा रही है। तो जैसी बड़ी टेक्निकल सी बात है, जैसे आप अपने आप को उस ब्रोशर से बाउंड कर लेंगे, आपने किताब बना ली, आपने छाप ली, वो किताब आपकी मार्केट में चले जाती है, पब्लिक फोरम प्लेटफॉर्म पे चले जाती है। तो क्या है, आपने अगर वहाँ पे ABC लिख दिया तो आपको ABC ही डिलीवर करना पड़ेगा।
पर क्या है, हर दिन एक ऐसा इवॉल्वमेंट, नई नई चीज़ें आ रही हैं कि अगर मैं बाउंड हो गया और कल मेरे को उस ABC से चीज़ बेटर भी आ गई मार्केट, फिर वो दे नहीं पाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो मतलब आज हर एक चीज़, एवरी डे वी ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एंड वी ट्राई टू फॉलो समथिंग न्यू। तो अगर आज के मुझे लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना, लेटेस्ट ट्रेंड को देना भी है, तो मैं उस 3 साल पुराने ब्रोशर को रख के मैं अपनी एक थ्रेशोल्ड अपने को लिमिट नहीं कर सकता। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी साउंड स्ट्रेटजी एंड वेरी बिग इंटेंट फॉर अ बिल्डर कि हम मतलब आज के दिन में मैं लिख दूं कि मैंने वहां पे नोकिया का मोबाइल देना है एंड 3 साल बाद मेरे को पता लगे सैमसंग का एक इतना बहुत बड़ी एप्पल का नया मोबाइल आ गया है, तो मैं अपने को बाउंड नहीं कर सकता है कि अब मैंने लिखा नोकिया तो नोकिया दूंगा मैं। क्लाइंट की तो कोई गलती नहीं है, मार्केट इज इवॉल्विंग एवरी डे। तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा इससे इन चीज़ों से बचा के रखते हैं कि टिल दी डिलीवरी टाइम कोई भी नई चीज़ें आ रही है, हम कैसे उस प्रोडक्ट में लगा पाएं और अपने आप को कहीं पे भी हम बाउंड ना कर पाए डे वन से। ग्रेट। आई थिंक वी डिस्कस दिस कि CP67 इज अ लाइव एग्जांपल कि हमारी डिलीवरेबल जो थी वो ज़्यादा थी एज व्हाट वी हैव कमिटेड। एग्जैक्टली जी। तो सेम चीज़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिगालिया में भी, मतलब आज की जब हम प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं तब हम बोलेंगे अपने कि हम 20 चीज़ें देंगे, पर जब तक प्रोडक्ट आप डिलीवरी पे आ जाएगा आप देखेंगे हमने 20 नहीं, हमने 100 चीज़ें दे दी, हमने 80 और चीज़ें ऐड कर दी। बिकॉज मुझे क्या लगता है सर कि रियल एस्टेट में जब पोजेशन के टाइम पे ना बिल्डर डिमांड बड़ी कम करता है क्लाइंट से, तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे बिल्डर कॉस्ट कटिंग एक्चुअली शुरू कर देता है। वी हैव सीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न कि जहाँ पे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े से फेल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंट है कि हम अगर डिलीवरी के टाइम पे चीज़ें ऐड ऑन करके दे रहे हैं, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक एक जो स्टेक होल्डर है उसके लिए सबसे सेफ्टी वाली चीज़ यही है कि उस कंटेक्स्ट पे वो देखे। आप देखेंगे ये सब चीज़ें होमलैंड रिगालिया के अंदर डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, हमारा जो आज की डेट में रेट है, एज वी मेंशन कि वी आर टेकिंग दी मैक्सिमम प्रीमियम फ्रॉम द मार्केट। तो आपने एक और स्टेटमेंट बोली कि अभी रियल एस्टेट मार्केट बड़े रॉ है, बड़ी वर्जन स्टेज पे है, तो हाउ यू आर कंसिडरिंग दैट कि अगले 3 साल 4 साल बाद मोहाली किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये टायर 1 सिटीज़ को कम्पीट कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड रियल एस्टेट aspects? See, the best part is about the migration that's happening in Mohali today. Everyone, even from Sangrur, Bathinda, anyone, कोई लुधियाना से, सब लोग आज चंडीगढ़ के आसपास आना चाहते हैं। The only option they have is जीरकपुर, मुल्लापुर, पंचकुला और मोहाली। Right. तो ये एक नेचुरली एक अलग से ट्राई सिटी, जैसे दिल्ली में NCR रीजन माना जाता है, तो ये ट्राई सिटी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुकी है, जिसके कारण एक बड़ा नेचुरल फ्लो है कस्टमर्स का, एंड उस फ्लो को देखते हुए बहुत रियल एस्टेट एंटर कर रहा है। बिल्कुल ठीक। दो आई ऑलवेज सजेस्ट एनीवन कि रियल एस्टेट की कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो आप जिसके बाद भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, जिसके बाद आपने लाइफ में जितनी मेहनत करके इनकम बनाई है, तो पहले आप उस प्रमोटर का, उस बिल्डर का बैकग्राउंड सब कुछ जानिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी देयर। क्योंकि अगर कोई बिल्डर ट्राई कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को बेचने के लिए विद इन द रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज, आई डोंट थिंक दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल टुडे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। किसी चीज़ के लिए आप कोई स्टील की बात करिए, सीमेंट की बात करिए, रॉ मटेरियल कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक। तो देखो उन चीज़ों की कॉस्ट को कहीं तो कहीं पुश करना पड़ेगा। राइट। वो एक ही तरीका है, कस्टमर पे करना पड़ेगा। पर क्या है, कुछ लोग ऐसे फंस चुके हैं साइकिल के अंदर कि वो पुश तो कर ही नहीं रहे और सस्ता करके सिर्फ साइकिल चलाने के लिए कुछ अपना साइकिल चलाने के लिए तो कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कम आउट फ्रॉम। तो आपको इस पे सर ये नहीं लगता कि अगर उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उससे ओवरऑल रियल एस्टेट थोड़ी इफेक्ट करेगी आने वाले टाइम में? या एज अ कम्युनिटी यू डेवलपर हैज़ टू रियली थिंक कि किस कॉस्ट पे हमने किस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ताकि जो एंड यूज़र है वो ना स्टेक में आए? देखो उसी में तब ऐसे ही मौक़ों पर हमें आप लोगों की सबकी सहारा की ज़रूरत पड़ती है, वेरिन आप लोग जानते हैं कि कौन डेवलपर कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को डेवलप या डिलीवर कर सकता है। एंड रेरा आ चुका है मार्केट के अंदर, सब कुछ बहुत ही, आई थिंक 90-80% चीज़ें अब सब कुछ विजिबल है। बिल्कुल। सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आज के दिन मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट कोई भी निकाल सकता है। वेरी ट्रू। हाँ, रेरा में जाके मेरी जितनी परमिशन है कोई भी निकाल सकता है, मेरे पास रजिस्ट्री है या नहीं कोई भी निकाल सकता है। वेरी ट्रू। तो आई वुड से कि कस्टमर को कोई भी यार कहीं पे कोई चीज़ लेनी है तो अपना R&D जरूर कर लो, मतलब इतनी मार्केट के अंदर कोई आग नहीं लगी है। आप कस्टमर को वेट भी करना चाहिए कि प्रोडक्ट की बिल्डर अगर डिलीवरी के पास है तभी चीज़ ले। प्री लॉन्च एंड लॉन्च इज नॉट द राइट स्टेज अगर आप बिल्डर को नया मार्केट के अंदर है।
वंडरफुल। मतलब वन शुड ऑलवेज बी वेरी कॉशियस, क्योंकि कस्टमर को क्या दिखता है यार प्री लॉन्च में घुस जाता हूँ, हायर दी रिस्क हायर दी रिटर्न वाली बात है, पर हमारा रिस्क बहुत हाई होता है कस्टमर का इस केस में, जब एक नया बिल्डर है और प्री लॉन्च में बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग कर रहा है। उमंग भाजी, आई थिंक आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा एक पेन पॉइंट जो है वो टच किया है, बिकॉज मार्केट में आज की डेट में 70% जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे प्री लॉन्च के पीछे भाग रहे हैं। तो वी ऑल्सो डिस्करेज दिस एक्टिविटी, बिकॉज प्री लॉन्च मतलब कि कोई नया डेवलपर आया जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, और प्री लॉन्च में बड़े प्रीमियम रेट पे वो चीज़ लेकर आ रहा है और लोग ईजी एग्जिट करना चाहते हैं विद इन 3 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स। तो ये एक बड़ा क्रूशियल स्टेज है जो रियल एस्टेट को ही डिफाइन कर, बिकॉज गॉड फॉरबिड्स कल को कोई भी डेवलपर अपनी कमिटमेंट नहीं दे पाता तो उसका पूरे के पूरी कम्युनिटी पे इफेक्ट होगा। तो एनी पर्टिकुलर एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू द इन्वेस्टर्स कि एज यू मेंशन वेरी राइट कि हम प्री लॉन्च सिर्फ उन कंटेक्स्ट पे देखें कि जिन्होंने अपने ऑलरेडी एक सही डिलीवरीज और एक अपने बेंचमार्क्स को अचीव किया हुआ है। तो हाउ यू टेक दिस? आई विल गिव 2-3 couple of good advice। किसी ने अगर प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करना ही है, अगर करना है प्री लॉन्च में इन्वेस्ट, देन वन शुड लुक एट दी प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर एंटरिंग इनटू, वाइल आप अपना मेहनत का पैसा लगाने लगे हैं। सेकेंड, अगर प्रोफाइल अच्छी है तो आप ज़रूर करें, नहीं है तो आई वुड से अगर पैसा लगाना ही है प्री लॉन्च में तो आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे प्रमोटर की या बिल्डर की कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर ना लग रही हो। मतलब आपने लगाना तो पैसा लैंड में लगाइए, किसी ने कोई 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का प्लॉट निकाला तो वहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पैसा लगाइए, वहाँ पे फिर भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप सोचें कि आप फ्लैट्स में या ऑफिसेज में या दुकानों में एक नई बिल्डर के साथ पैसा लगाना चाह रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की अफेयर, क्योंकि पैसा बनाने में बहुत पैसा चाहिए। पहले तो आदमी लैंड खरीदे, फिर उसको बनाए, डिलीवर करे, डेवलप करे, बहुत बड़ी स्टेज है, ये बहुत बड़ा साइकिल है, इट इज नॉट इजी। एंड मुझे उमंग भाजी एक चीज़ ये भी लगती है कि बीट एनी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, चाहे वो पोजेशन के नज़दीक है, मिडवे है, अगर डेवलपर इज़ राइट, उसके प्रोफाइल इज़ गुड, तो किसी भी स्टेज पे अगर एक इन्वेस्टर एंटर कर रहा है तो उसे अच्छा एग्जिट एट द एंड ऑफ द टाइम मिल जाएगा, कि चाहे वो पोजेशन पे एग्जिट ले ले या 1-2 साल बाद ले ले, अगर मार्केट बुलिश रहती है। तो अगर अच्छे डेवलपर से किसी भी स्टेज पे एंटर करता है तो उसे 110% ही विल गेट अ बिल। देखो, अगर अच्छा प्रोडक्ट है ना तो 100% अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब आप एक अच्छा क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा एंड यूजर ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट में लगाए जहां पे एक अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छी लोकेशन हो, अच्छा प्रमोटर हो, राइट, अच्छा प्रमोटर, अच्छी लोकेशन, अच्छी डेवलपमेंट हो रही हो। अब सर इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा प्रमोटर, एज यू मेंशन की प्रोफाइल। अब एज अ ले मैन मेरे लिए प्रोफाइल यही कि जो मैं न्यूज़पेपर में एड्स देख रहा हूँ, जो मैं एफएम में एड्स सुन रहा हूँ, या जो मैं बिलबोर्ड्स पे एड्स देख रहा हूँ, तो हाउ आई कैन डिफाइन कि विच इज़ अ गुड डेवलपर एंड विच इज़ अ बैड डेवलपर। प्लस इसी के रेलिवेंट एक और मेरा कंसर्न है कि वी हैव सीन इन पास्ट बिफोर रेरा देयर वर बिग नेम्स इन एनसीआर एंड अदर एरिया जहाँ पे डेवलपर ने 6-8 डिलीवरीज की थी, मे बी 20 की थी, एंड दे गॉट बैंक्रप्सी। तो हाउ वी डिफाइन एज अ क्लाइंट कि ये सही डेवलपर है, इसका प्रोफाइल अच्छा है? एनी 2-3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा इसमें। आप डीएलएफ की कम से कम ऐड देखेंगे अखबार के अंदर, आप एमआर की कम से कम ऐड देखेंगे अखबार के अंदर, आप लोधा ग्रुप की कम से कम ऐड देखेंगे, आपको ओबराई रियल्टी की ऐड ही नहीं मिलेगी। मतलब जो बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं आज उनको बाहर मार्केट में जाना नहीं पड़ता माल बेचने के लिए। बिल्कुल, आज कस्टमर खुद उनके पास चल के आता है, ढूंढ के आता है कि मैं किस तरह उनके पहुंच के उनका सामान ले पाऊं। तो आई वुड से, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन, कि जो प्रमोटर आज के डेट में अपने आप को अग्रेसिवली होके बेचने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ वो कहीं तो कहीं कुछ ट्रबल में है। तो सर अब जिसकी न्यूज़पेपर में ऐड आए तो हम वो आई एम नॉट हाँ वो उसको नहीं मैं कह रहा, पर इनडायरेक्टली मैं कि आप बड़े प्रोफाइल्स को भी स्टडी करिए, वो किस तरह से अपना माल बेच रहे हैं। राइट, वो बिना दिखाए अपना माल बेच रहे हैं तो मतलब उन्हें कुछ तो कुछ दम है, कस्टमर सही जगह जा रहा है। बिल्कुल, तो इस चीज़ के लिए कस्टमर खुद बहुत होशियार हो चुका है, इसको स्टडी करके करे जो भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एज यू मेंशन फ्यू डेवलपर्स, सो आई जस्ट वांट अ वेरी स्पेसिफिक आंसर ऑन दिस। आई जस्ट नीड 2 names from your side. One is in Tri-City and one overall, to whom you actually consider कि they are doing a very fine practice और बिल्कुल bang on, they are moving on a right track. I think every developer in Tri-City is doing trying to do very good work for the market. They all been trying कि हम लोग बेस्ट कर पाएँ मार्केट के लिए। बाकी देखते हैं, बाकी नेशनली अगर मैं कहूँ तो आई फॉलो ओबरॉय रियल्टी द मोस्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें इंस्पायर होता हूँ, वो ओबरॉय रियल्टी से होता हूँ या डीएलएफ से होता हूँ मैं। सो दीज आर 2 डेवलपर आई लुक अप टू। ग्रेट। लोकली बहुत डेवलपर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर दे विल ऑल बी एबल टू डिलीवर वेल। राइट। एनी डेवलपर विच यू रियली थिंक यार ये आप एक कंपटीशन में आ सकते हैं, यार हाँ इसकी प्रैक्टिसेस वाकई दे आर डूइंग इट क्वाइट गुड। आई मीन ऑल्दो एवरीवन, आई थिंक हम लोग अपने आप से ही बहुत कंपटीशन इस टाइम अपने आप से
से ही बड़ी फाइट में है कंपटीशन में Right, कि right. हमने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया सीपी, अब हमें पता नया वाला मॉल्ट क्रिएट करना है, उसमें ऐसा क्या चीज़ नया लेके आए हैं, मतलब इतना दिमाग लगाए जा रहे हैं कि ऑलरेडी इतना बढ़िया बना दिया, क्या ऐड करें. वेरी ट्रू. तो वी ट्राई टू कम्पीट विद इन आवरसेल्व्स टुडे विद इन द एंटायर ग्रुप. जो आज हम लोग की सिनर्जी है, मतलब चाहे माय यंगर ब्रदर, माय अनदर यंगर ब्रदर, चाहे सब अपना अपना काम इतना अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि सब आपस में ये डिस्कस करते रहते हैं हम सारे के सारे कि हम अपने आप को और कैसे अगले प्रोजेक्ट में बेटर कर पाएं. Great, great, great. And sir, coming back to your family, as you mentioned कि that is a family business, कि आपकी फैमिली पूरी, आपके ब्रदर्स, आपके सारी फैमिली इन्वॉल्व है, तो क्या क्या पोर्टफोलियोज और रोल्स आप लोग देख रहे हैं, और एंड हु इज देयर इन योर फैमिली हु इज डूइंग दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स? जी, टुडे इमीडिएटली मैं बात करूँ, इनसे मैं डेली टच में रहता हूँ. मेनली इट इज़ अभय and mainly it is Minal, and they are your, and they all my family. Okay. कोई स्पेशली बेस्ट पार्ट क्या है, कोई परचेज की तरफ देख रहा है, कोई आगे कैसे बढ़ना है, कि कैसे अपने फंड्स को मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो कोई उसकी तरफ देख रहा है. मेरा नॉर्मली ज़्यादा रोल रहता है सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ. तो हर फैमिली मेम्बर का अपना काम डिवाइडेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास घर से वर्किंग हैंड्स हो तो आप देयर इज नो लुकिंग बैक इन दिस इंडस्ट्री. एंड जो हमारे साथ पुरानी टीम भी जुड़ी है, चाहे हमारी सेल्स टीम की बात करो, चाहे मार्केटिंग टीम की बात करो, चाहे हमारे अकाउंट्स टीम की बात करो, किसी भी, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मेरे साथ 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं. Very right. बहुत छोटी सी टीम है पर ये बहुत पुराने में से जुड़े हुए हैं. एंड ये सारे मेरे एक फैमिली हैं. आई डोंट कंसिडर देम एज माई एम्प्लॉइज. मतलब हम लोगों को लड़ाई भी होनी थी घर में किसी की लड़ाई होती है, तो हम उसी तरीके से बहुत छोटा सा हमारा परिवार है जो कि हम इस कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. And as you already prove your steel in real estate, so I just want to know how you as a family man, Mr. Umang Jindal, like if I can say how Umang is in family. I mean, you're a pampered kid or a decent husband, a caring father. I mean, डे वन हम लोग को बड़ा इंडिपेंडेंट रखा गया है. लाइक वी नेवर बीन इन की इस तरह से कि हम लोग को बड़ा बचपन से ही, मतलब हॉस्टल में पढ़े हैं, घूमने फिरने की हमें बहुत परमिशन दी गई हुई थी. हमने पूरी इसी एज में बहुत ऐसी हार्डली कंट्रीज होंगी जो नहीं देखी होंगी. उन चीज़ों से बहुत सीखा हूँ आज मैं और हमारा पूरा परिवार, जिसको हम सारा कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं. पर देन ये इंडस्ट्री टाइम बहुत मांगती है, ये इंडस्ट्री एफर्ट बहुत मांगती है. एंड इस इंडस्ट्री में अगर नंबर 1 रहना है, अपने एरिया में नंबर 1 रहना है, फिर इसमें क्या है ना, ये नहीं है कि आप सिर्फ पंजाब में नंबर 1 बन जाओगे तो नंबर 1 है. पंजाब तो बहुत ही एक रियल एस्टेट बहुत छोटा है अभी. तो अपने आप को अगर आगे बढ़ना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली आना है, बैंगलोर जाना है, तो हमसे तो बड़े बड़े वहाँ पे शार्क बैठे हैं. मैं आपको ना एक बड़ा कैंडिड फीडबैक देना चाहूँगा, रिस्पेक्टिव की, बिकॉज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट दिस इज़ नॉट द रीज़न. सिंस होमलैंड इज़ अ रीजनल प्लेयर, कि सिर्फ गिनती के 3 प्रोजेक्ट हैं और हम ट्राई सिटी में हैं. यू कैन आस्क एनीवन फ्रॉम कनाडा, इन UAE, इन बॉम्बे, कि वहाँ पे भी होमलैंड पीपल नोज व्हाट होमलैंड इज. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. आई थिंक यू गाइस हैव. उसी के लिए फिर वो बहुत टाइम एफर्ट के कारण आप अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते. तो अब देखें, मेरा भी टारगेट है कि अगले 10 साल के अंदर बस जो करना है करके डिलीवर करें. Any complaints from family की, from kids की, यार डैड इज नॉट गिविंग टाइम एंड मैम की, वो हमें खुद ही दिखता है कि हम समय नहीं दे पाते फैमिली को. पर क्या करें, अब वो रेस इतनी फास्ट हो चुकी है. पहले एक आदमी ग्रो करता था 50 सालों में. आप पुरानी जनरेशन की बात करें तो एक पुश्तें लगती थी कि ये सेकेंड जनरेशन में ग्रो हुई है. अब ये टाइम हो गया 10 साल का. ये सिर्फ सफर ही 10 से 15 साल का रह गया ग्रो करने का. Actually. तो मेरे आज मैं अगर 32-33 साल का हूँ तो आई डोंट सी कि मैं 60 में जाके कुछ अकम्प्लिश करना चाहता हूँ. right. मैं चाहता हूँ कि मैं अगर 32-33 का हूँ तो मैं 40 में कर लूँगा. Great. तो अगर वो रेस अगेंस्ट ही टाइम हो गया है तो उसी कारण आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स. I understand. And but still, Umang Bhaji, whenever you get time, तो where you just go with your family, any specific? अपनी बस आई ट्राई कि मेरी डॉटर मेरे साथ हो. मैं बट डॉटर के पास पहुंच जाता हूँ मैं. बेटा बहुत छोटा है. How old is your daughter? My daughter is 7.5 years. अच्छा, great. तो you generally spend time with your daughter when you are free? I try कि maximum time अपनी बेटी के साथ बना पाऊँ. Wonderful. जितना पॉसिबली दे पाऊँ. But then I try कि मैं हर महीने कोई ट्रिप निकाल ही लेता हूँ जी. Great. And you're a social media person? I mean, not much. Okay. Not much. अभी सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कैसे यूज करना है, पोस्ट वगैरह. Because your team is pro enough, because हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बस क्रिएट हुआ रहता है आपके प्रोफाइल्स
points पे. Thank you. Great. And we have covered almost every possibilities, Umang Paji, where we earlier discussed ki how you evolve as a entrepreneur and how Homeland and CP become a major landmarks. Then we discuss about real estate scenario, how real estate is going in another 5 years in Mohali region, and definitely as a family you are doing superb and creating jobs and empowerment to the Tri-City. One last thing, sir, with this we sum up the complete episode. Any particular advice you want to give to the stakeholders ki when they are entering into Tri-City, because 60 to 70% portfolio is from outside Chandigarh, so any particular advice you want to give to stakeholders when they come into Chandigarh for real estate hunt? See, if you're an end user, there is never a wrong time, there is never a right time to enter real estate. Right. बोथ, मतलब ऐसा कोई मार्केट के अंदर आग नहीं लगी है, ये एक टेम्प्रेरी फेज होता है आग का, जिसमें ऐसा लगता है कि यार हमने कोई चीज़ मिस कर दी है. आपने कभी कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं की होती है. एक अच्छा प्रोडक्ट आपको, अगर आप सही डेवलपर के पास पहुंच गए हैं तो वहाँ पे कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस राइज आ रहा है. जितना मार्केट में उसका, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक्स है. मतलब आज ये नहीं कि अगर आज मैं कोई चीज़ 10,000 रुपये की बेच रहा हूँ तो मेरी वो चीज़ 40,000 रुपये की हो जाएगी. Got it. तो क्या है ना, कस्टमर को भी बड़ा स्लोली चलना चाहिए, इस रेस का पार्ट ना बने कस्टमर. बिल्कुल ठीक. कस्टमर सही डेवलपर के पास जाएं, जितने उसके फंड अलाउ करते हैं उतनी ही चीज़ लें. बिल्कुल ठीक. कभी भी फंसने की कोशिश ना करें. दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एज वेल, जो रियल एस्टेट वालों का काम है. हम लोगों को लोगों छत बना के देनी है, लोगों के पैसों को यूज़ करना है. तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जहाँ पे कोई डेवलपर फंस भी जाता है. तो जब वो फंसता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे फैमिलीज भी साथ फंस जाती हैं, जितने 400-500 हज़ार लोगों के पैसे लगे होते हैं. तो वन शुड बी वेरी कॉशियस वाइल इन्वेस्टिंग, शुड स्टडी द प्रोफाइल ऑफ द प्रमोटर, शुड नो वो कहाँ पे पैसा लगा रहा है, किस जगह लोकेशन में पैसा लगा रहा है. सस्ती चीज़ की तरफ ना भागें. पहले तो अगर किसी बिल्डर को मार्जिन मिल रहा है, वो तभी डिलीवर कर पाएगा. मार्जिन तब मिलेगा जब वो किसी कॉस्ट को प्लस अच्छा एक मार्जिन ऐड करके बेच पाएगा. वो तब होगा जब वो थोड़ा महंगा होगा. अगर कोई चीज़ सस्ती मार्केट में मिल रही है तो आपको मैं 100% श्योर कर सकता हूँ कि सस्ती रियल एस्टेट डिलीवर होना पॉसिबल नहीं है. क्या बात है. मतलब पॉसिबल ही नहीं है. मतलब अगर टमाटर 20 रुपए है तो 20 रुपए ही है जी. अगर आप वो टमाटर को मैगी में डाल के, अगर आप उसको बोलो मैंने 10 रुपए की मैगी और 20 रुपए टमाटर लेके 12 रुपए का बेचना, नहीं बेच सकते जी आप. मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई मैकडॉनल्ड ने भी बर्गर के अंदर टमाटर डालना बंद कर दिया था. Very true, very true. तो ये कॉस्ट बहुत डे बाय डे बढ़ रही है. तो आप सोचिए ना कि आपको हमेशा रियल एस्टेट सस्ते में ही एंटर करना है. यू कैन वेट फॉर इट ऑल्सो, वेट फॉर द राइट डेवलपर, पर सही डेवलपर के साथ ही एंटर करें जब भी करें. आई थिंक द बेस्ट गिव अवे व्हाट आई पर्सनली गेट इज़ कि वी एज एन इन्वेस्टर कभी गैम्बल गेम में ना जाएं. रियल एस्टेट इज़ नॉट गैम्बल. यहाँ पे कोई 2-2 महीनों में पैसे डबल नहीं होते. अगर आपके पास फंड्स हैं और बैकअप है, देन ओनली यू एंटर इनटू रियल एस्टेट. एंड यस, अ गुड डेवलपर डेफिनेटली कैन चेंज योर फॉर्च्यून्स एज यू हैव चेंज मैनी पीपल्स फॉर्च्यून्स हियर, सर. थैंक यू. उमंग पाजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे डिस्कशंस करके. एंड वी आर लुकिंग रिगालिया कैन बिकम अ बिगर बेंचमार्क. It will be the best, I assure you. Right, right. Thank you so very much. Thank Thanks you. for your time, and Thank we'll meet again, sir. Thank you, Tarun ji. Thank you. Thank you.